गाजा में एक बार फिर हालात बिगड़ चुके हैं। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने दक्षिणी इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए और करीब 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक इस जवाबी कार्रवाई में 64,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की भूमिका एक बार फिर अहम हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान जारी किया। उन्होंने हमास को सख्त चेतावनी दी कि अगर वो बंधकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करता है तो अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि हमास बंधकों को सुरंगों से बाहर लाकर अपने सामने रखने की योजना बना रहा है ताकि अगर इजराइल हमला करे तो बंधकों की भी मौत हो जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल अब कतर पर कोई और हमला नहीं करेगा। दरअसल ये बयान तब आया जब कुछ ही दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक कार्यालयों पर बमबारी की थी। इस हमले की निंदा यूरोपीय देशों और अरब जगत ने भी की थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें कतर पर हुए इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय इजराइल के दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और साफ कहा कि गाजा में युद्ध खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि हमास सभी बंधकों को रिहा करे और आत्मसमर्पण करे। In reaching an outcome here that leads not just to the end of this hostilities, not just to the release of all of the hostages, both living and deceased, not just the disarmament and elimination of Hamas, but also a better future for the people of Gaza, which isn't possible as long as Hamas exists, which isn't possible as long as 48 hostages are being held. And so we're going to continue to encourage Qatar to play a constructive role in that regard. We wouldn't even be having these conversations right now if these, barbarians had not done what they did. We have strong relationships with our Gulf allies. We work very closely with them on a number of things. We've been engaged with them. We've been engaged with them consistently before what happened and after what happened. And ultimately, the point we will make to everybody is that some fundamentals still remain. Ongoing issues in Gaza. And that is that every single hostage, both living and deceased, needs to be home immediately. Hamas can no longer continue to exist as an armed element that threatens the peace and security, not just of Israel, but of the world, and that the people of Gaza deserve a better future, one that cannot begin until Hamas is eliminated and until all of the hostages, both living and deceased, are home. That it's possible to Really no impact whatsoever in bringing us any closer to a Palestinian state. The only impact they actually have is it makes Hamas feel more emboldened. It makes other elements like Hamas feel more emboldened. It actually has made it harder. It's actually served as an impediment to peace. Exactly what needs to happen, and we remain firmly committed. As I said, we cooperated and were involved together just a few weeks ago on the issue of Iran and Iran's desire to possess not just nuclear weapons, but short and mid-range missiles with the capability of threatening our presence here in this hemisphere, in this region, and of course the safety and security of the Jewish state. But I would venture to say a threat that actually extends well beyond that to the kingdoms of the Gulf and eventually even into Europe. In fact, some of the missiles they're trying to develop now can already range countries in Europe. And so a nuclear Iran governed by a radical Shia cleric that possesses not just nuclear weapons potentially, but the missiles that could deliver those weapons far away is an unacceptable risk, not just for Israel, not just for the United States, but for the world. And that's why the President continues with our campaign of maximum pressure. There will continue to be maximum economic pressure on Iran until they change course. फिलहाल हालात बेहद गंभीर हैं। एक तरफ जहां इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हमास पर जवाबी हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बंधकों की जान खतरे में है। अमेरिका और कतर जैसे देश इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमास वाकई बंधकों को मानव ढाल बनाकर इस्तेमाल करता है तो ये स्थिति और भी घातक हो सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले के दौरान हमास के लड़ाके 251 इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। माना जाता है कि अब भी हमास के कब्जे में 94 बंधक हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि इनमें से अब सिर्फ 60 लोग ही जीवित हैं। 31 अगस्त 2025 तक
कुल 148 बंधकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। इनमें से 105 बंधकों को 2023 में गाजा युद्ध के दौरान युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा किया गया था। इसके अलावा 5 बंधकों को हमास ने किसी समझौते के बाहर खुद ही रिहा कर दिया। 8 लोगों को आईडीएफ ने सैन्य अभियान के जरिए छुड़ाया और 30 बंधकों को 2025 के गाजा युद्ध विराम के दौरान छोड़ा गया। हालांकि पिछले दिनों हमास ने चेतावनी दी कि वो और बंधकों को रिहा नहीं करेगा, क्योंकि उसका आरोप है कि इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता रोककर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा में दोबारा हमले शुरू कर दिए। वहीं हमास का कहना है कि अब गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई को रोक दिया गया है। इस बयान के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है। हमास का कहना है कि बंधकों की रिहाई तब तक नहीं होगी जब तक इजराइल गाजा पर हमले नहीं रोकता। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब इजराइल कतर में छिपे हुए हमास के नेताओं को खत्म कर देगा तभी ये युद्ध खत्म हो सकेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के नेताओं को खत्म करने के बाद हम अपने सभी बंधकों को भी रिहा करवा सकेंगे। ये बयान उन्होंने तब दिया जब इजराइल ने हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हवाई हमला किया था। इस हमले की कतर सरकार ने कड़ी निंदा की थी। I've said repeatedly that Israel's decision to act against the Hamas terrorist leadership in Qatar was a wholly independent decision by Israel. It was a decision taken by me and our top security force chiefs. It was conducted by us. And we assume full responsibility for it because we believe that terrorists should not be given a haven, and the people who planned the worst massacre of the Jewish people since the Holocaust cannot have immunity. So we did it on our own, period. Well, we're still getting the final reports. I'll tell you what the impact of the strike is. We sent a message to the terrorists. You can run, but you can't hide. And we'll get you. The States acts to defend its interests and defend its allies. And America has no better ally than Israel. It's obvious that Israel has no better ally than America. You've been a remarkable partner. We will continue to act together with great force and great determination to protect our countries, and I may add to protect our common. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कतर में रहने वाले हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने युद्ध को लंबे समय तक खींचने के लिए हर तरह के युद्ध विराम के प्रयासों को रोक दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इन्हें खत्म करना जरूरी है ताकि हम सभी बंधकों को वापस ला सकें और युद्ध खत्म हो सके। हमास ने इस हमले के बाद एक बयान भी जारी किया। उसमें कहा गया कि उनके वरिष्ठ नेता और वार्ता टीम के सदस्य इजराइल के हमले में बच गए हैं, लेकिन 5 सदस्य मारे गए, जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख के बेटे खलील अल हया भी शामिल हैं। हमास ने दोहा में हुए इस हमले को पूरी वार्ता प्रक्रिया को खत्म करने वाला बताया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ये साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट की जंग और भड़कने जा रही है, क्योंकि जो लोग कतर में बैठकर शांति के लिए मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं।